Jai Guruji. So lovely to be here, really. I mean, it's a blessing. दिन फाजा सत्संग भी ना मिला, तो आज तो लग ही नहीं रहा था कि हम आएंगे. But Guruji makes it possible, everything. And I'm especially happy because my elder daughter just got engaged. So Jai Guruji. Yeah. And again, Isha said she's definitely conduit in my life. She said, come and you have to share. So नहीं मुझे पौने 7 निकलना पड़ेगा because I have to meet my daughters-in-law. She said नहीं आप आओ गुरुजी decide करेंगे. And I just checked the watch and it's 7:45. I have to be there. So our Guruji plans everything. He micromanages our lives. We worry needlessly, I feel, and we are warriors. But he's trying to make us his warriors. Truly, because it's a very difficult time, volatile times, turbulent times that we're living in. My turbulent times actually started many years ago, before I met Guruji. And things were turbulent. Everything was falling apart. My world was collapsing. From my marriage to my health. And I had no way of hope. But Guruji takes us in his fold on his timing when he knows that we need him the most. So therefore, there's no Naya, no Purana. Guruji used to say, Janam Janam da rishta hunda Bhagwan de na. Koi nawa nahi, koi purana nahi. But yes, I feel privileged and I feel blessed that I met him in the physical with his grace. And how I met him, when I got married in 88 in India, I went to many Babas and Gurus, Pandits, and very excited that I'm in the land of Gurus. But then, and my asthma triggered to another level. Every changing season, I would be in hospital in the ICU, on steroid injections and tablets. And the quality of life deteriorated very soon after I got married. Stress, you could say, culture shock, whatever it was. Every emotion of ours affects our physical being. So therefore we need to really watch our emotions. When we're sad, that sadness permeates every cell tissue. And today I've learned it, so I make sure consciously that, Guruji, I want to just be a happy soul. Be clear? The sadness really permeated me back then. And if anyone saw me, they used to say, you know, she's such a sad soul. And today with his grace, everyone says she's such a happy soul. But that's how he converts the impossibility to possibility, sadness to joy. He's with each one of us. As I said, timing is his. So I went to many Babas and Gurus, just to cut it short. Then one Sangat, like Guruji said, Guru Parivar, apne parivar ko lo zyada pyar karega aur kaam aayega. And today we have a beautiful Guru family world over, across every continent, country, city, town in the world, which was, you know, I couldn't imagine it when he said, Jaga Jaga Meri Jyot Jalegi, tu jayengi satsang karenge. It was foreign. His words were foreign to my mind. And one Sangat said, socially she met me and she said, tu mere Guruji paas chal. वो आया पंजाब से. I said, नहीं, हो गया मेरा. मुझे किसी गुरु पास नहीं जाना, मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत गुरु पास जा चुकी हूँ. तो she said, नहीं ये डिफरेंट है, एक बार आ जा. 7 बजे थे, सॉरी 6 बजे थे, Thursday evening, and गुरुवार, and वो मेरे घर पहुँच गई, and then she came, she brought me to Guruji. गुरु कोई नहीं था संगत उस टाइम, गुरुजी बैठे थे अपनी गद्दी पे, और वो भी ऐसे बैठे थे जैसे बस शॉर्ट्स पहन के, ट्रेनर्स पहन के, टी-शर्ट पहन के, very relatable to us, you know. और मेरे दिमाग में था कुछ होगा, बेड होगी, सैफ्रॉन रोब होगा, डोनेशन बॉक्स होगी उसके साथ, पर ऐसे कुछ नहीं था. It was very cool dude, it's very relatable, very कलयुग के गुरु, and he was sitting on his gaddi. Yeah, and he was sitting on his gaddi, and as I bowed, मुझे लगा कि this is it. मेरी जो खोज थी, जो मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल गया, मुझे मेरे रब मिल गया. Truly, the soul knows, आपकी आत्मा को पता है, सच्चाई की तरफ खींचती है आपकी आत्मा. तो when I bowed, गुरुजी ने वही बोला जो मैंने संगत को बोला कि मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत गुरु के पास जा चुकी हूँ. तो गुरुजी ने कहा कि तू बड़ा भटकी आई है मेरे को, तू बड़े गुरु से बाबा को जा चुकी है, हूँ आई है सही जगह. So then my journey started. And I would say it was a journey of the soul initially. क्योंकि soul इसलिए I say because I was always very spiritually inclined. I was a seeker since childhood.
because I was born with a hole in the heart, an asthma, life-threatening. So my first 10 years of my childhood was spent in hospitals. So I was always wondering, why am I suffering? I'm a sibling, I'm the only girl amongst 4 brothers. So we have 5 siblings, and God bless, they're all ill and naughty. But I was the only one who was always sick, kind of the underdog of the family. Always sick, always that bichari, though my parents, she's ill. And I didn't like that. As a child, I thought, this is not fair. God is not fair. And I used to wonder, I used to gaze up at the sky in England, walk around Dad's gardens, stare up at the skies and say, God, if you're there, I want to meet you one day. And tell me, why do I suffer so much? So when Guruji looked at me and he said, and I said, I'd love to have tea with you. In my, because born and bred in England, I would just say, I would love to meet you, God, if you're there. And I would love to have a cup of tea with you. That was my 9-year-old dialogue with God. And suddenly Guruji looks at me and said, Chai Prashad Pingi. And I said, my God. I said, I really have found God. And I knew it. I didn't know he's God. I'd be lying, but I knew he's extraordinary. He is someone I have never met before. His aura was larger than life. His radiance, his compassion, non-judgmental, just, when he looked at us, he just embraced us. Embraced us lovingly, compassionately, with all his grace. We judge each other, but Guruji never judges us. हम आज भी गलतियां करते हैं, पर गुरुजी फिर भी माफ कर देते हैं. And that's the beauty. And whenever people used to bow, and then मैं फाइल खोलती है तेरी, मैं तेरा पिछला भी देखा, खून भी देखा, अगली भी देखा. So how he rewrites our destinies of what we present to him. He used to say कि आया करो बस. कोई आंदा है गड्डी मंगता है, कोई आंदा है हस्बैंड मंगता है, ये बकरी मंगती है, मैं भी कार मंगता है, बड़ा मकान मंगता है. तो मैं जो देना है ना, मैं जो देना है वो कोई नहीं मांगता. रब को लोग रब मांगते. आगे बड़ा हमारा टाइम आना है, बारिश होगी, टेंशन चलेगी, डिवोर्स डिप्रेशन कैंसर. मैं कहा गुरुजी ये तो इंग्लैंड में होता है जहाँ से मैं आई हूँ. गुरुजी हंसते लेके तो घरगर्दी कहानी है. मैं कहा गुरुजी 97 में नहीं गुरुजी ने बोला. मैं कहा नहीं गुरुजी ये कैसे हो सकता है, कैंसर होगा. तो कैंसर हो गया, होता है, बहुत होता है, क्योंकि वो लिविंग इन लाइफ, आई डोंट नो, कलयुग है, बहुत हमारा टाइम है. अब आ गया ये गुरु जिसमें गुरुजी ने बोला था, we are now in the thick of it and we feel it, because nothing is certain. The only certainty is him. Nothing is predictable. The only predictability is him. The only stability is him. The surety is him. The certainty is him. Baki, everything is trembling. The world is crumbling around us. Relationships पक्के नहीं है, finances पक्के नहीं है, कल का पता नहीं है, आज यहाँ है तो कल कहाँ है हमें पता नहीं है. इतनी ज़्यादा volatility होगी, uncertainty होगी. But he is also uncertain. वो जैसे कहते हैं ना, मैं तेरी पतंग. And he is हवा में सचमुच हम सब बोल रहे हैं, पर गुरुजी ने पकड़ा हुआ है हमें. And इसलिए कहते हैं सिर्फ चंगी चीज़ मांग लो, रब को लो, रब मांग लो. गुरुजी से चरणों में रखना गुरुजी, बस यही सबसे बड़ी प्रार्थना है और सबसे बड़ी आई थिंक ब्लेसिंग है. और क्या चाहिए, अगर रब है तो सब है. तो मेरा तो बीमारियों का तो बहुत सत्संग है, बहुत ख़त्म ही नहीं होता है. लेकिन मैं एक अस्थमा को सुना देती हूँ जो आज लंगर प्रसाद हुआ. तो बैठी थी मैं और मेरा अस्थमा शुरू हो गया. चेंजिंग सीजन था इंडिया में, दिल्ली में, एंड मेरा शुरू हो गया. मुझे सांस नहीं आ रहा था और गुरुजी यहीं बैठाते थे. ये नहीं क्योंकि मैं स्पेशल थी कुछ, पर यहीं बैठाते थे. बाद में बताती हूँ क्यों. क्योंकि जब आना मत्था टेकना सोचना पीछे बैठ जाते. गुरु कहते इधर ऐसे बैठाते थे. तो यहाँ बैठे बैठे मेरा अस्थमा शुरू हो गया. मैं कहा गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा. कहते कोई गल नहीं, लंगर कर. मैं कहा गुरुजी मुझे हस्पताल चाहिए और आई नीड माई स्टेरॉइड इंजेक्शंस. उसी से मैं ठीक हो जाऊंगी. इंस्टेंटली होता है गुरुजी. कहते ए खा, ए तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं. आई वाज ओल्ड ऑफ 31 एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज रियली एंग्री विद गुरुजी. आई सेड गुरुजी आलू गोभी दाल है. आई स्टार्टेड ब्रोलिंग. आई सेड ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है गुरुजी. कहते कमली बाहर जूती उतार दी, अपने सनबर्ड छट के आया कर एंड अपना लॉजिक ना अप्लाई किया कर. एयू तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है, अगर आज ठीक होना है
कल्याण कराना है तो चुप करके लंगर कर. So I ate resentfully. As I bowed, telepathically I just said, मैंने दोबारा यहाँ कभी नहीं आना. गुरुजी कहते कल आ जाए. कल्याण कितना ऐश कर. I said क्या ऐश करूँ? सांस ही नहीं आ रहा यहाँ तो. I'm choking to death. And then I bowed again and I said मैंने यहाँ कभी नहीं आना. मैं सीधा hospital जाऊँगी यहाँ से. And he looked at me and said हूँ hospital जाने की लोड़ नहीं. तेरा अस्थमा ठीक कितना, कल्याण कितना ऐश कर. कल आ जाए. मैंने कहा मैंने को आना ही नहीं कभी दोबारा. मैं जैसे गई अस्पताल गाड़ी मनूवर की, रियलाइज किया आई एम ब्रीदिंग लाइक नेवर बिफोर. एक लंगर प्रसाद के साथ मेरा अस्थमा जिससे मैं पैदा हुई थी crippled my life in a white school, the only colored girl in England. I would always stand out like a sore thumb because I was the only one who could not participate in PE. I know India में PE we call it, physical education in England. So I could not participate in basketball, and I was anyway the only colored girl in an English school. So anyway, I would stand out like a sore thumb. I'd be asked weird questions like, "Do you have snake charmers? Do you live in a mud hut in India?" There was a lot of racism back then too, and it was hard growing up then. I always felt like a misfit, and more so because I was not blending in. And then these strange questions. Then I got married into a Marwari family in India. Then again, I was a misfit. This British accent girl in a Marwari family who covered their heads. मैं belong कर करती हूँ. पर जब मैं गुरुजी को मिली मुझे समझ आया मैं यही belong करती हूँ. ये मेरा घर है असली. This is my sense of belonging. He gave me an identity. औकात दे देते हैं हमें सब कुछ दे देते हैं. जहाँ लोगों को समझ नहीं आती आप कौन हो, गुरुजी को सब कुछ. ये ऐसे रोती थी, मुझे इनका एक ही सीन याद है. जैसे मायके से जाते हैं ना, ये गुरुजी को ऐसे खड़े हो के देख के मुझे बस उनका, मैं सबको यही बताती हूँ, मुझे उनका एक ही सीन याद है. जैसे मायके से जाते थे ऐसे रोते. एक बार मैंने गुरुजी को बोला, फिर मैं कहा गुरुजी घर ना बेचो, यही रहने दो ना, मैं कुछ भी कर लूंगी, झाड़ू मार लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे घर ना बेचो. कहते कम नहीं घर गृहस्थी में श्रम मिलता है. कितने प्रोफाउंड आंसर दिया. आप घर गृहस्थी में होते हो, रब को याद करते हो, क्योंकि आपके जो स्ट्रगल्स होते हैं, डेली स्ट्रगल्स होते हैं, बच्चों के साथ स्ट्रगल्स, स्पाउसेस के साथ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ नामक दुखिया सब संसार कोई ना कोई कष्ट होता है. जब होता है ना वो कष्ट, तब हम रब को याद करते हैं. नहीं तो हम रब को भी यही नहीं याद करते. हम बड़े एरोगेंट हो जाते हैं कि हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, पर एक पल का पता नहीं, टाइम का पता नहीं. टाइम कभी सही नहीं रहता, सेम नहीं रहता किसी के लिए भी. बस आज सही है तो कल सही नहीं है, या पर पीछे का सही नहीं था. पर गोल्डन पीरियड हर बंदे का लाइफ में आता है. रिकग्नाइज करो, जब गुरु जी के पास आ जाते हैं हमारा सबका गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है. और ये अनसर्टेनिटी में भी कभी गुरु जी यहाँ घुमाते हैं, कभी वहाँ घुमाते हैं, उसमें भी गुरु जी हमारे कर्म बदलते हैं. अगर आज आप दुबई में हो, कल इंडिया में हो, वो भी कोई कारण है, वो भी कोई कारण है. क्योंकि मुझे जब मैं दिल्ली जाती मुझे दिल्ली बैठने नहीं देते 3-4 हफ्ते से ज़्यादा. फिर मुझे यहाँ भेज देते हैं या कहीं और भेज देते हैं. वो कहते हैं मैं थोड़ी हवा में थोड़े कर्म बदलना, या सी में ज़मीन पे या हवा में. तो गुरु जी को पता है क्या करते हैं. हमें सिर्फ आना है, हाजिरी लगानी है. हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हम ही बदल जाते हैं. गुरु जी पे कहने से प्रेस करके कि देख तेनू बंदा बनाता है, किसी को भी. फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्यों बैठाते थे. फिर एक दिन बोले तू श्रद्धा में पास होगी, इंग्लिश एजुकेशन थी, पता नहीं कौन श्रद्धा है, पास होगी. तो मैं कहती थी थैंक यू गुरु जी. बड़ी एक्साइटेड होके मैंने कहा थैंक यू गुरु जी. कहते कमली समझी तो है नहीं तो मेरी गाल, उनको समझ आ गई कि मुझे नहीं समझ आएगी श्रद्धा क्या होता है. तो मैंने कहा सॉरी गुरु जी श्रद्धा. कहती कमली तेरे पिछले जन्म के संस्कार वधिया सी, इस करके तो पहले आ गई है, तो तू रोया ना कर कि मेरा भरा नहीं आता, मेरी मां नहीं आती, मेरे बच्चे नहीं आते. तू रोया ना कर. और संस्कार आदे अनुसार सब आते हैं. तो तू पहले आ गई, फिर तेरे बाद में आएंगे, सब आएंगे. देखिए एक एक बंदा आएगा, तेरी फैमिली, तेरे फ्रेंड्स, एक एक बंदा. मैं कहा गुरु जी ना आप मेरी फैमिली को जानते हो ना मेरे फ्रेंड्स को जानते, कोई नहीं आएगा. कहते देखिए सारे पेज बंदे आएंगे, अच्छे बैठेंगे. तो वही हुआ, देखते देखते अनफोल्ड हुआ. तो फिर श्रद्धा में पास होगी. तेनू नींबू की तरह निचोड़े, चाहे तेरा स्किन कैंसर ठीक किया. आज तो आप देख रहे हो, मुझे बड़ी खुश होगी. आप देख नहीं सकते थे तभी कहते तेरे ना तो कोई लंगर खाने के ध्यान नहीं सी, तेरा चेहरा इतना भयानक है. वो भयानक चेहरा उन्होंने बदला मेरा. कई लोग हैं जिनको याद होगा
काला था, बस था, आंखें बंद थी एंड इंट्रोवर्ट थी मैं, ऑब्वियसली किसी से बात नहीं करती थी, कोने में बैठती थी, गुरुजी यहीं बैठाते थे, कहते तेनू पता है कोई लंगर खाने को तैयार नहीं, से 4 लोग खाते थे, मैं तेरी खाती थी। तो ये भी एक रीज़न था। फिर देखते देखते कहते सारी दवाइयाँ छड़ दे, मैं हाँ, एंड फिर कहते कि तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी, मैं कहा हाँ जी गुरुजी गई थी, कि क्या सी उन्हें, मैं कहा गुरुजी, कहते हाँ दस ना, उन्हें क्या सी तेरी कोई लाइफ नहीं सी दिसंबर 97 ਦਾ, उन्हें सही क्या सी, ਹੁਣ दस कौन ਵੱਡਾ तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਦਲਦਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲਣਾ। He rewrites our destinies. They're not wrong. If you go to a good astrologer, you can read your. But what else then? तो वहमों में पड़ जाते हो कि मेरा ओहो मैं मरने वाली हूँ या मेरा ठीक नहीं है, तो कहते इस करके कहना इधर आते हो तो किधर जान की लोड़ नहीं है, वो थोड़े वहमां च पा देते हैं। और मैं तो थोड़े लेख बदल देना, तेरे हत्था दे लकीरा, तेरे मत्थे दा लकीरा बदल दिया ने, तो की जरूरत है इधर उधर जाने की। पूरा विश्वास रखो, विश्वास से ऊपर आपका सरेंडर कर जाओ। और ये सरेंडर की जो जर्नी है बहुत आहिस्ता आहिस्ता आती है बिकॉज पहले हम लॉजिकल माइंड अप्लाई करते हैं, फिर हम लेटर्स ट्राई करते हैं, जो गुरुजी बोलते होते हैं कहते आगे लेटर्स ट्राई। गुरुजी को हर चीज़ पता है, कहते रब नु खिलौना जाना, राम को खिलौना जाना। आप समझते हो क्या पाते हो, अपनी चलाकियाँ लेके आते हो। कोई आता था, मैं यहाँ बैठती थी ना तो सब देखती थी, ये एडवांटेज था जरूर। तो यहाँ बैठती थी तो कोई एक लेडी आई मत्था टेक के कहती कि हुने तो सब ने लड़के आई है, इतने 2 मिनट की ह्यूमिलिटी दिखा रही है। तो कहते उसका की फायदा, हम्बल होना ना, कार हम्बल हो, अपनी नेचर बनाओ ह्यूमिलिटी की, कंपैशन की, बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, लव, ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी तो मिस हो रही है दुनिया में, अभी तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर्स हो रहे हैं, हेट्रेड हो रही है, हेट क्राइम्स हो रहे हैं। I was a victim of it just a month ago. I came, I was here in May, the whole of May. June, then I had to go to Manchester, my birthplace, and I was just there. June was fine. July was also fine. August, there was some riots that broke out in Manchester. And again, it brought back my childhood memories because I became a victim of racism again. I was just trying to park somewhere, my car, I got out and this white car came and the guy goes, Paki, get out of my country. And really harshly and really with a lot of hatred. Paki, get out. And I got scared, it was evening. I'm petrol nahi tha gaadi mein. So I said, now what do I do? So, they are following you, knife crimes or they're burning your cars. It was a very bad time. Those 2-3 days was very, very scary, very daunting. So, what I'm trying to say, then of course good sense prevailed. I said, Guruji, आराम से घर पहुंचा दीजिए, पेट्रोल नहीं है ना, कुछ नहीं होता, घर पहुंचा दीजिए। So these are the uncertain times, अब सोच भी नहीं सकते क्या क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। So protection बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरुजी ने अपनी छतरी के नीचे हमें सब परिवार को रखा हुआ है, एक बबल सा बन गया गुरु संगत का, और उनको रखा हुआ है, रक्षा कर रहे हैं। So जहाँ भी लेके जा रहे हैं गुरुजी को लेके जाने दो, उनकी मर्जी, आपके लिए अच्छा बेटर, क्योंकि हम नहीं देख सकते। गुरुजी कहते तुम तो दीवार तक नजर आता है, मैंने तो बहुत आगे तक नजर आता है। विद हिज इन्फिनिट विजन ही हैज अ बेटर प्लान फॉर अस। तो आज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जहाँ लेके जाओगे। मैंने अपना घर नहीं देखा 4 महीने से, मैं दिल्ली नहीं गई 4 महीने से। मेरी सिस्टर आई हुई है दिल्ली से, वो मुझे मिलने आ गई, तो कहती तू तो आना नहीं, मैं आ जानी। So, देखते देखते विदिन वीक्स लंगर प्रसाद के साथ उनके ओरा में बैठने से, सत्संग में बैठने से, सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो ओरा है ना गुरु जी का, ये सबको एक एक बंदे को ब्लेस कर रहा है। यहाँ बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे। जो लंगर प्रसाद है वो हमारी दवाई है, वो कैलोरीज नहीं है, तो वो एक्चुअली हमारी दवाई है। पर उस भाव से अगर हम खाएं, अगर खाएं कि हाँ मैंने भूख लगी है तो खाए, तो वो कैलोरीज है। अगर हम खाएं कि नहीं ये मेरी दवाई है, ये मेरी सोल के लिए, ये मेरी बॉडी के लिए, मेरी माइंड के लिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तो वो ही लंगर हमारी दवाई है हर चीज़ के लिए। सो उस भाव से खाना है। किस भाव से हम आते हैं, हाई हम खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वो एक लेडी और आई, मत्था टेकी और गुरु जी ने कहा आ गई है 9 बजे लंगर के टाइम, चूल्हा नहीं चलाना चाहिए ना, कार आगे खाना खा। तो मतलब कहने का कि राम को हम क्यों खिलौना जाने, हम सब से बड़े चलाक हैं, बड़े चुस्त हैं, पर गुरुजी को सब पता है। गुरुजी कहते मैं थोड़ी सोल देख लेना, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ
तुसी मतलब अपना सोचते हो कि मैं आ गई है, उन्हें बुलाया है, खाना देगी, बड़ा स्वाद बनाती है, यू नो दी बड़ी अच्छी व्यू है, चलो उत्थे नेटवर्किंग शुरू हो गई है, यू नो बिजनेस शुरू हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी है ये सब कुछ। गुरु जी कहते इत्थे रह जाना, नाम दी कमाई नाल जानी है, ते सच्ची जो देन आया ना वो ले लो, नेटवर्किंग नहीं करो, कनेक्शंस नहीं बनाओ, इत्थे कनेक्शंस नहीं बनते, कनेक्शन बनाने ते रब नाल बनाओ, रब नाल कनेक्शन बनाओ। सचमुच कहते सी असली चीज़ मंग लोगे ना तो दुनिया की चीज़ें वैसे थोड़े पीछे पीछे दौड़ेगी, पर असली चीज़ तो मंग लो, रब को रब मंग लो, देखना पे दुनिया की चीज़ें थोड़े पीछे पीछे दौड़ेगी। पर हम दुनिया की चीज़ें पे पीछे पीछे भागते हैं और रब को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम बड़े एरोगेंट हैं, हमारी फितरत ही यही है। हमें जब मिल जाता है तो हम चाले बात कर देते हैं कि मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे क्या जरूरत है रब की। पर हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर अ स्पेक इन दिस होल यूनिवर्स, कॉस्मोस, हम कुछ भी नहीं है, एक डॉट है ना। तो इसलिए ये डॉट जो है, ये डॉट, ये लाइट जो है, इन्फिनिट लाइट, उसके साथ मर्ज हो जाए वही बहुत है। तो गुरुजी के साथ तो बहुत सत्संग है, ये मेरा माँ समाधि से पहले, माँ समाधि के बाद और भी है, वॉल्यूम्स है, पर जय गुरुजी नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। जय गुरुजी। हाँ, बहुत ज़रूरी शेयर करनी है, टाइम के साथ सीखिए। मैं ऐसे नहीं थी पहले, पर गुरुजी विजडम भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, अच्छा माइंडसेट भी देते हैं। पर ग्रैटिट्यूड फॉर मी, प्रैक्टिस मोमेंट टू मोमेंट, ग्रैटिट्यूड आज भी आना है, ग्रैटिट्यूड है। कॉन्वेंट मेरी ईशा बनी, हमेशा ही बनती है, गॉड ब्लेस यू ईशा, लव यू लाइक अ डॉटर, पर हमेशा ही बनती है। लेकिन ग्रैटिट्यूड मीन्स ये नहीं कि बस ऊपर से थैंक यू महसूस कर रहे, ग्रैटिट्यूड इज एन इमोशन, हर पल के लिए। हाय थैंक यू गुरुजी, मैं जाग गई, गुरुजी कितनी अच्छी संगत, थैंक यू, लंगर बहुत अच्छा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू करते यूनिवर्स इतना सुनती है, फिर और देती है, आपको अबंडेंस देती है। ये एक प्रैक्टिस जो मैंने सीखी है और प्रैक्टिस की, इंटरनलाइज किया है मैंने, ये मेरी लाइफ का एक, यू कैन से इट्स व्हाट ड्राइव्स माय लाइफ, द ग्रैटिट्यूड प्रेयर। कभी कंप्लेन आप करने की कोशिश भी करो क्या है, बोलो नहीं पर थैंक यू, सी यू ग्लास ओवरफ्लोइंग, नॉट हाफ फुल बट ओवरफ्लोइंग विद ब्लेसिंग्स, बिकॉज हमेशा देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। And they always say happy people are not always grateful, but grateful people are always happy. So be happy, Jai Guruji.